Assembly. Today is a Saturday and several classes have their physical exercise day. We're supposed to be out in the field exercising, but this morning we have gathered here for this special assembly. What is the special day today? Today, as declared by UNESCO, it is International Mother Tongue Day. It is International Mother Tongue Day, and the date today is 21st of February. What date? 21st of February. What is a mother tongue? Mother tongue means the native language with which one grows, and you are comfortable with it. Why do we call it a mother tongue and not a father tongue? That is because you are born learning it, listening to it, speaking it, and you are as comfortable with the language as you are comfortable with your mother. Therefore, we call it a mother tongue. Now, do you know that there are several dialects in India and in other countries in this whole world? While in the country like United States of America, people not only speak English but they also speak Spanish. There are several people that speak Spanish more than English because their mother tongue is Spanish. Similarly, it's not that everyone abroad speaks English. For people that are born with the French culture, French is their mother tongue. And for Chinese it is Mandarin. For Nepalese it is Nepalese, and so on and so forth. Here in India, though Hindi is widely spoken and understood as the official language, but several people have different mother tongues. They could be Bangla, Punjabi, Gujarati, Marathi, Tamil, Kannada, Malayalam, Kashmiri, but they have another dialect. It's Dogri, I believe. Dogri. And then there is Urdu, Sindhi, Bhojpuri, and several others. But here in Uttar Pradesh, most of us have our mother tongue as Hindi. Most of us have mother tongue as Hindi. Now this morning, we have these little children that shall share their mother tongues with us. We'll start with the girls that are going to speak Punjabi. Here is this girl, little girl from Punjab. Not from Punjab, but her mother tongue is Punjabi. Please give her a big hand as she's going to speak something. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦ ਇਰਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਥਨੋਲੌਗ 2005 ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 8.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10ਵੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ 63,34,300 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,91 ਕਰੋੜ 24,077 ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
इस दियां दो उपबोलियां हैं, पूर्वी पंजाबी ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ पूर्वी पंजाबी ਅਤੇ पश्चिमी पहाड़ी बोलियां नू मिला के पंजाबी अपने सुर विज्ञान करके अजोकी हिंद यूरोपी बोलियां दे परिवार विचों सब तो वक्री बोली है। पंजाबी दियां कई उपबोलियां हैं, पर मांझी नू सब तो अमीर उपबोली मानिया जाता है। यह उपबोली पुराने पंजाब के मांझा खित्तों विच बोली जाती है, जिसका केंद्र अजोके अमृतसर ਅਤੇ लाहौर विच है। इस उपबोली की वरतों पंजाबी दियां किताबां लिखण विच होंदी है। इतिहास पंजाबी होरना दक्षिणी एशियाई बोलियां की तरह ही एक हिंद आर्या बोली है। पंजाबी नू उन्हां सारे मुल्कां विच घट गिणती भाषा के तौर पर बोलिया जाता है जिथे भी पंजाबी रहे हैं, जिवें इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ਅਤੇ खासकर कैनेडा, जिथे कि पंजाबी कैनेडा की मरदमशुमारी के मुताबिक चौथी आम बोली जाने वाली भाषा है। मुताबिक पंजाबी सिख की धार्मिक भाषा है जिदे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की गई है। यह भांगड़ा संगीत की बोली है जिसने दक्षिणी एशिया और संसार भर में चंगा नामना खटाया है। पंजाबी सभ्याचार भारत और पाकिस्तान विच 1947 ईस्वी की वंड करके प्रभावित हुई। पंजाबी भाषा और मभियाचार भंड बड़े हुए देशा और धार्मिक संबंधियों को आपस में जोड़ती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। That was a beautiful, I can say, an effort, because we would have been more happy if we would have got those figures also in Punjabi, like 1 lakh something something something. And today we came to know that in Canada, Punjabi is the 4th most spoken language. So thank you very much from Punjab and to Punjab and Punjabi. Next we are going to have a round from the Urdu speaking girls. They have their mother tongue as Urdu. अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस्म ग्रामी हिफ्ज़ा है और मैं दर्जा हश्तम की तालिबा हूँ और आज मैं उर्दू की तारीख पर तकरीर करने जा रही हूँ। उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें तमाम ज़बानों को शामिल किया गया है, इसलिए इस ज़बान में काफ़ी शीरी है। यूँ तो ये ज़बान काफ़ी पुरानी है, लेकिन हिंदुस्तान में मीर तकी मीर के आने के बाद ही इसे मकबूलियत मिली। उर्दू ज़बान के जानिबदारों में इकबाल और गालिब का नाम काफ़ी इज्जत से लिया जाता है और इनके अशायरों ने जहां में काफ़ी मकबूलियत भी पाई। और खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान की तकसीम से पहले ये दोनों शायर हिंदुस्तान की ही मिट्टी की पैदाइश हैं। आज़ादी से पहले तमाम सरकारी तकबीरात में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था। आज हमारी अदलिया में उर्दू अल्फाजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू ज़बान फ़ारसी, अरबी और संस्कृत ज़बानों से मिलकर बनी है। ये माफूल के ज़माने से चलती चली आ रही है। इसका नाम गुलाम हमदानी ने रखा था। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक इसे हिंदी ही माना जाता था। इसे और ज़बानों मसलन दहलवी के नामों से भी जाना जाता था। ये सबसे ज़्यादा शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बान है। इस ज़बान की कशिश ऐसी है जिसने तमाम मज़हबों को मानने वालों को अपनी तरफ राग़िब किया है। आज ये ज़बान हिंदुस्तान के कश्मीर, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में कसीर तौर पर बोली जाती है और इस ज़बान को बोले जाने की वजह से आम बात यह है कि इन जगहों की ज़बान में दूसरों को मुतासिर करने का इतना जज्बा है कि जो पूरी तौर से इनको नहीं समझ पाते वो उनको भी ये उर्दू में लिखी रुजाइयाँ काफ़ी पसंद आती हैं। ये ज़बान मेरी मादरी ज़बान है और मुझे इस बात का गर्व है। शुक्रिया। मुझे इस बात का फ़ख्र है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस्म ग्रामी फातिमा मेहदी है। मैं दर्जा हश्तम की तालिबा हूँ।
आज तमाम दुनिया में यौम मादरी ज़बान मनाया जा रहा है। मेरी मादरी ज़बान उर्दू है। हर इंसान को अपनी मादरी ज़बान से वैसी ही मोहब्बत होती है जैसी अपने मादरी गिरामी यानी माँ से होती है। मुझे भी उर्दू से उतना ही प्यार है। उर्दू ज़बान में एक प्यारी सी कशिश है जो हर दिल को मोहब्बत का पैगाम देती है। इसके अल्फाज कानों में मिठास घोल देते हैं। उर्दू की पैदाइश हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही हुई थी, इसलिए उर्दू और हिंदी दो सगी बहनों की तरह हैं। उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान को बहुत से माहिनाज अदीब और शायर दिए हैं, जैसे मीर अनीस, जोश मलिहाबादी, फिराक, कैफी आज़मी और बशीर बद्र। मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अल्लामा इकबाल जिन्होंने हमें कौमी तराना सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिया है और लब पे आती है दुआ जैसे दिल को छू लेने वाले नज्म दिए हैं। उर्दू के कुछ अल्फाज हर हिंदुस्तानी की रगों में घुल मिल गए हैं, जैसे इनकलाब जिंदा। जिस तरह हर बच्चे को अपनी माँ के आंचल में सुकून मिलता है, उसी तरह मादरी ज़बान में बात करने से हमारे दिल को सुकून मिलता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। And now we have a girl who's going to speak. It's Sakshi Lakmani who is going to speak in Sindhi. Good morning. Good morning, Honorable Good morning, Honorable Mother Ma'am, Father Sir, Brother Joy, respected teachers and all my dear friends. I am Sakshi Lakmani from class 5th Newton and I am going to tell you something about Sindhi and from where the Sindhis belong. Hare Ram. सिंधी एक जगह जो नालो आहे जेको पाकिस्तान में आहे। असांजे पूर्वज पहिरें सिंध में रहंदा हुया। इन्ही सां असांजी सिंधी भाषा ठही। कहिड़े बि क्षेत्र में सिंधी घटना हूंदा आहिनि। सिंधी भाषा अरबी भाषा वांगुर लिखदा आया। असांजी मदर मैम भी सिंधी आहे। वो ॿारनि सां इलाही प्यार करदी आहे। मूंखे गर्व आहे कि मां सिंधी आहियां। मां सिंधी में गानो गाया थी। लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, जंहिंखे थींदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार, जंहिंखे थींदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार। लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। थैंक यू। Now, that is what we learnt about Sindhi. Sindhi is the richest language that is spoken in India. It's got 56 letters next to Urdu. Urdu is 52. I believe 52 letters are there in Urdu. And Sindhi has 56 letters. It is written like Persian from the right to the left. It is not written like Hindi from the right, from the left to the right. And apart from that, Sindhi is a language that unites Persian, Hindi, Marathi, Sanskrit, Gujarati. You will find a blend of all these languages in Sindhi. Wonderful literature has been written in Sindhi, and very wonderful Brahma Gyan, or the knowledge of the self, is available in Sindhi literature. We've all heard the beautiful song in Sindhi, that is the Madam Mast Kalandar. It is dedicated to two saints that lived in Sindh for around 200 years back, and one of them was Jhulelal and the other was Ali. Because remember, Sindh is a part of now Pakistan, but it was then a part of undivided India. So it is the Madam Mast Kalandar, Ali da Pehla Number. That is also a very popular song in Sindhi. Thank you. And alright, now we have this girl, that is Aditi Singh, and
Sankalp Srivastava, that are going to represent their mother tongue, and that is Hindi. I take Hindi as my mother tongue because I've grown up learning it and talking in it. In fact, it was Sindhi I learned much later, so we'll take Hindi as our mother tongue. सुप्रभात आदरणीय मदर मैम, फादर सर, ब्रदर जॉय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज सबको पहले मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं अदिति सिंह आज आप सभी को मेरी मातृभाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान है, मिलत नहीं को सूल। अर्थात अपनी मातृभाषा की उन्नति के लिए सारी उन्नति को भूल जाना चाहिए और बिना मातृभाषा के ज्ञान के हृदय को वह पीड़ा नहीं मिलती जो एक मातृभाषा के ज्ञानी को मिलती है। अर्थात कि बिना मातृभाषा के ज्ञान के हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से वंचित हो रहे हैं। आज के समय में जहाँ देशी से ज्यादा विदेशी भाषा को महत्व मिल रहा है, वहाँ मातृभाषा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो हम इंसान हर तरफ से प्रश्नों से ही घिरे हुए हैं, किंतु यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। मैं यह नहीं कह रही कि अंग्रेजी आवश्यक नहीं है, किंतु अपनी मातृभाषा को न जानकर आदमी अधूरा रह जाता है। मेरी मातृभाषा के बिना हम किसी भी जानकारी को रट तो सकते हैं, परंतु आत्मसात नहीं कर सकते। मेरी मातृभाषा हिंदी है। संस्कृत जो कि सबसे प्राचीन भाषा है, यह उसका ही अपभ्रंश है। हिंदी सबसे ज्यादा सरल और सुलभ भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त करना बहुत ही आसान माना जाता है। वैसे ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपनी मातृभाषा सीखें। यह जरूरी नहीं कि हिंदू ही हिंदी, मुस्लिम ही उर्दू और सिख ही पंजाबी सीखे। मैंने ये सुना है कि एक इंसान को जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा, उसका मस्तिष्क उतना ही विकसित होगा। इसलिए अन्य भाषाओं का ज्ञान हमें अपने मस्तिष्क विकास के लिए सीखना है, परंतु आत्मिक के साथ बौद्धिक विकास मात्र भाषा से ही संभव है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय मदर मैम, फादर सर, ब्रदर जॉय। आई एम संकल्प श्रीवास्तव। मैं संकल्प श्रीवास्तव आपकी अपनी मातृभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने बोलने वाली हमारी माँ होती है। वह जैसा भी बोलती है वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। मातृभाषा बहुत ही सरल और सहज होती है। मातृभाषा का सीखना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि उसी भाषा को हम बचपन से सीखते, बोलते या सुनते आ रहे होते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी की मान्यता अब अपने देशों को छोड़ के कई देशों में अपना पैर फैला रही है। अमेरिका में भी कई स्कूलों में हिंदी और संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी है। हमारे यहाँ प्रथम भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के द्वारा ही हिंदी का विकास हुआ है। हमारे देश के बहुत से विद्वानों ने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया और उसका हिंदी में अनुवाद किया है। हिंदी आज हमारी मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में हुए जहाँ हिंदी बोली जाती है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। इन्हीं पंक्तियों से मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Okay, now we are going to play a very beautiful song that represents several languages in India. It will be played so we can listen and enjoy. We'll hear Kashmiri, Punjabi, Urdu, Sindhi. We'll hear Tamil, Telugu, Malayalam, Bangla, Assamese, Oriya. So let us enjoy this very old song that is about the mother tongue of different people that live in India. Wait.
all these children that are in the room comfortable. Go to side. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा चांद तरज थे न्यान तरज इकवट बनिए चांद तरज तेरा सुर मिले मेरे सुर देना मिलके बड़े नवा सुरकार मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मुंहिंजो सुर तुंहिंजे जैसा प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं उड़ता दरिया बहके सागर में मिले बदला गारो पलके बरसन होले होले ഇതേതാ നം ഇരുവരും സുരവും നവദാതും ദിസൈ വേറാനാലും ആയിതേ ആറുകൾ മുകിലായി മഴയായി പൊഴിവത് പോൽ ഇതൈ നം ഇതൈ నన్నదనియే నిన్నదనియా నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మరచరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো তুই কসু তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো তুই কসু সৃষ্টি হো তুই কোথা চালু